Hi everyone, welcome to Every Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the LRDI Basic to Advanced series. So let's begin with today's session. And before we begin, I have an important announcement, right? For those who already don't know. So we are actually starting with our next batch that is called the Zenith batch. And it is going to be live from the 20th of March. So don't miss out on the dates, right? We are offering a comprehensive program and we are also currently running a discount, right? This batch is on a discounted price right now at 19,999 for the first 100 learners, right? So the links to join this particular batch there in the description. You can definitely call the team before uh, deciding upon anything, right? You could get more clarity upon the same, right? Also, if you're looking for a specific LRDI batch, so there is an ongoing batch which started from the 7th of January, right? A few classes have been definitely done, so you can definitely check out the details of this batch also in the description. क्लास का फ्लो देख लो कि कहाँ तक खुद हमारा हो चुका है, ठीक है? एवरीथिंग इज देयर इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जितना भी हमने अभी टिल डेट कर रखा है. You can then join us in the live batch also, right? So let's start with today's set. And as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start understanding this set. I hope you got this correct. Let's read this. So, there are 7 friends: Rani, Rishabh, Bakshi, Ridan, Harini, Cecil, and Pari. They bought at least one pen, at least one eraser, and at least one sharpener. ओके, हर एक पर्सन के लिए, हर पर्सन के रेस्पेक्ट में इसने क्या बोला, किस तरीके से इसको हम समझ रहे हैं कि हर पर्सन ने एटलीस्ट एक पेन खरीदा है, हर पर्सन ने एटलीस्ट एक इरेजर खरीदा है, हर पर्सन ने एटलीस्ट एक शार्पनर खरीदा हुआ है. लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्स मेरे को बहुत क्लियर है कि हर पर्सन में एटलीस्ट वन 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 तीनों कैटेगरीज में आएगा. बट अपर बाउंड आई डोंट नो राइट नाउ, ठीक है? सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर अ कंडीशन जहां पे मेरे को इसका अपर बाउंड भी मिल रहा हो. Let's keep reading further. The cost of one pen, one eraser, and one sharpener is rupees 231 respectively. तो उसने per pen, per eraser और per sharpener, right? Difficult to pronounce. Per pen, per eraser and per sharpener. उसने cost define कर रखा है. That is 2, 3 and 1. Okay. Let's see it further. Additionally, it was known that the difference between the amount spent by Rishabh and Ridan, Rani and Pari, and Harini and Cecil was equal. Second point says none of them bought more than 2 pieces of any item. Now, this I would like to use in conjunction with this at least one wala condition. अब देखो, हमें सबसे पहले ये समझ में आ गया अब कि ना द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी वेरी लेस. द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी वेरी लेस. क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर पर्सन ने क्या कर रखा है, एटलीस्ट तीनों आइटम्स का एटलीस्ट एक एक खरीद रखा है. और सेकंड पॉइंट में ये बोलता है नन ऑफ देम बॉट मोर देन 2 पीसेस ऑफ एनी आइटम. तो कोई भी पर्सन किसी भी कैटेगरी का मैक्सिमम 2 ही खरीद सकता है. तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ना सारे पॉसिबल इसमें से क्या करने चाहिए, कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए. सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम पहले बना के क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट इवेल्युएटिंग मोर कंडीशंस. और मे बी विल बी ट्राइंग टू फिक्स कि इस पर्सन ने ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका इतना क्वांटिटी खरीदा, इसको इसका इतना क्वांटिटी खरीदा, एंड सो ऑन. आगे जाके हमारे पास एक पॉइंट ये भी दिख रहा है, फॉर एग्जांपल दिस फिफ्थ पॉइंट, the total amount spent by each friend is distinct. So this is also very important. The total amount spent by each friend is distinct. तो combinations भी possibly हमारे क्या हो रहे होंगे, different बन रहे होंगे. तभी हमारा जो total amount spent by each friend है वो भी क्या है, distinct है. Now इसको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप से नहीं करूंगा कि मैं पहले नाम लिख दे रहा हूं और फिर मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास पेन कितना है, इरेजर कितना है, शार्पनर कितना है. मैं इसको उल्टी तरीके से करता हूँ. लेट्स लर्न समथिंग डिफरेंट इन दिस. आई डू दिस डिफरेंटली, ठीक है? इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने वाला हूँ. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जितनी भी कैटेगरीज है ना उसमें लाइक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 के जितने भी पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशन है, वो सारे कॉम्बिनेशन क्या कर लेते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं. एंड देन विल स्टार्ट लुकिंग एट हाउ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लुक लाइक. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है,
ये जो हमारे 3 कैटेगरीज़ है, सॉरी फॉर द पॉज़, जस्ट पेन इज़ नॉट वर्किंग। सो जो हमारा जो 3 कैटेगरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, पेन, इरेज़र एंड शार्पनर, इसको लिख लेते हैं। सो पेन, इरेज़र, ठीक, शार्पनर लिख लिया हमने। देन इसके जो हमारे कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी मेंशन कर लेते हैं। पेन, इरेज़र, शार्पनर एक-एक का कितना कॉस्ट है हमारा? 2, 3 एंड 1। सो 2, 3, 1 रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मेरे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना क्वांटिटी के, वो मैं कितना वो उनको नोटिस करता हूँ। सबसे पहले जैसे अगर मैं क्वांटिटी लिखना स्टार्ट करूँ, पेन, इरेज़र और शार्पनर किसी भी पर्सन का, किसका है वो मुझको अभी फ़िलहाल टेंशन नहीं है। किसी का अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखना स्टार्ट करूँ, सो लेट्स से देयर कुड बी अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि कोई भी पर्सन है, तीनों चीज़ का उसने 1-1-1 आर्टिकल खरीदा, एक कॉम्बिनेशन ही हो सकता है। एक्चुअली में ये लीस्ट कॉस्ट वाला कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अभी हम कॉस्ट भी मेंशन कर लेंगे। देन और क्या पॉसिबिलिटी है, कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसने लेट्स से 2 का उसने 1-1 खरीदा और 1 का 2 खरीदा उसने, तो अब उसके 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है 1-1 2 बने, या हो सकता है 1-2 और 1 बने, या हो सकता है हमारा 2-1 और 1 बने, राइट? तो 2 का उसने 1-1 खरीदा और 1 का उसने 2 खरीदा, इसके हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देन और आगे क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिसने दो चीजों का दो दो खरीदा और किसी एक का उसने वन खरीदा हो, इसके भी तुम्हें 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। आई कैन डू अ 1-2-2 और आई कैन डू अ 2-2-1 और आई कैन ऑल्सो डू अ 2-2 और 1। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर कुड बी अ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑल्सो, जब तीनों चीज का क्या खरीदा जाए, 2-2-2 आर्टिकल्स। आई होप दिस इज क्लियर। हमने सबसे पहले क्या कर लिया है, हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए। ठीक है, एंड अगर मैं नोटिस कर भी लेता हूँ स्टार्ट इसी पॉइंट पे, तो हमारे पास टोटल डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन मेरे पास बने हुए हैं। नाउ ये तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लिए ना हर एक आर्टिकल का। अब मैं क्या करता हूँ, प्राइस निकालता हूँ। अब प्राइस बनेगा कितना, सो टोटल अगर नोटिस करो इस कॉम्बिनेशन का प्राइस कितना बनेगा, 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 1। तो ओवरऑल मेरे पास प्राइस कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, 2 + 3 + 1। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 + 3 5, 5 + 1 दिस वुड बी 6। ठीक है, 5 + 1 दिस वुड बी व्हाट, 6। देन अगला कॉम्बिनेशन हमारा कितना आ जाएगा, 2 + 3, ये सेकंड वाले का कर रहा है। सो दिस इज 2 + 3 5 और बाकी यहाँ पे 5 + 2 कितना हो जाएगा, ये वाला 7, राइट? सॉरी माय बैड, 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस वुड बी 7। नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा, 2 + 6, 2 + 6 इज 8, 8 + 1 into 1 दैट इज 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9। ठीक है, you'll have to excuse me with the pen, है ना, थोड़ा सा बीच में लैग कर रहा है पेन। सो नेक्स्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन का 2 to 4, 4 + 3 7, 7 + 1 दिस इज 8। Then next 2, 2 into 1 is 2, 2 + 6 8, 8 + 2 this has to be 10। Next 4 + 3, 4 + 3 7, 7 + 2 this is also 9। तो अब मेरे को 9 रिपीट होते हुए दिखता है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट 2 to 4, 4 + 6, 4 + 6 is 10, 10 + 1 is 11। okay, nice। and last but not the least 2 to 4, 4 + 6 10, 10 + 2 is 12। नाउ इफ आई नोटिस मेरे पास ना ओवरऑल अगर प्राइसेस के करस्पॉन्डिंग देखा जाए, तो मेरे पास कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं। मेरे पास 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, 8 बन सकता है, 9 की मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, राइट? 9 की मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 6 7 8 9, 6 7 8 9 10 11 12 मेरे पास 7 डिफरेंट प्राइस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एंड इंसिडेंटली इफ आई नोटिस हमारे पास 7 ही फ्रेंड्स थे और इसने यहाँ पे बोल भी रखा था इन दिस फिफ्थ पॉइंट। सो ये बहुत क्रूशियल हो गया हमारे लिए। इसने फिफ्थ पॉइंट में बोल भी रखा था, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच फ्रेंड इज डिस्टिंक्ट।
तो इससे मैं क्या कंक्लूड करने वाला हूं कि हमारे 7 फ्रेंड्स में से सबका अमाउंट क्या होने वाला है, डिस्टिंक्ट होने वाला है। तो ये सारे नंबर हमें एक एक बार एग्जैक्टली दिखने वाले हैं। तो 6 वाला, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी ना किसी का डेफिनेटली होगा। 7 वाला भी कॉम्बिनेशन किसी ना किसी का डेफिनेटली होगा। 8 वाला भी कॉम्बिनेशन किसी ना किसी का डेफिनेटली होगा। लेकिन जो 9 वाला है, इन दोनों 9 में से किसी एक ही कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे किसी एक पर्सन के साथ। अब वो मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन से तरीके से हमारा 9 यूज होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों 9 में से कोई एक यूज होगा फॉर सम पर्सन, देन ये 10 वाला डेफिनेटली यूज होगा, 11 वाला डेफिनेटली यूज हो रहा है, और ये वाला 12 भी डेफिनेटली यूज हो रहा है। अब मेरा टारगेट यही है कि हम ये फिगर आउट करें कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसको एक्चुअली में बिलोंग करता है ना। उसी के लिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स थे। तो नाउ लेट्स लुक एट द अदर पॉइंट्स एज वेल, और उनके थ्रू हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज डन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा हो चुका है, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच फ्रेंड इज डिस्टिंक्ट। सिक्स्थ पॉइंट में भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है रिगार्डिंग दैट 9, जो कि हमारा 2 पॉसिबल था। बाक्सी स्पेंट ₹9 इन टोटल। तो अब मेरे को ये पता है कि ये जो बाक्सी है, राइट, ये जो बाक्सी है उसका या तो हमारा ये वाला 9 है। ठीक है, जस्ट राइट इट अगेन। इट इज लाइक द पेन हैज बीन रिएक्टिंग इन स्लो मोशन। ओके, I'll figure out after this lesson कि इसमें क्या है। Let's try to complete this. So ये जो 9 है, या तो ये हमारा बाक्सी है, या तो ये वाला 9 हमारा बाक्सी। इन दोनों में से कोई एक हमारा बाक्सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, वन ऑफ दीज टू हैज टू बिलोंग टू बाक्सी। तो 6 पॉइंट इज डन। 5th पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। 4th, 3rd एंड फर्स्ट, ये हमारे पास पॉइंट्स बचे हुए हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट अगर मैं नोटिस करूं, ओनली हरिणी, नाउ ये हम नाम अच्छा आराम से क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। देखो, ओनली हरिणी बॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स while only Hridan bought the minimum number of items. Now this is very easy, क्योंकि मेरे को पता है मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स ये वाले कॉम्बिनेशन से बनेगा, 111, क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है दैट इज द लीस्ट, दैट इज 1 + 1 + 1 3। और मैक्सिमम हमारा कब बनेगा, जब तीनों कैटेगरीज का हम मैक्सिमम वाला नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदे, दैट इज 2 2 2 6 टोटल। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है 111 एंड 222, दीज हैव टू बिलोंग टू व्हाट, हरिणी एंड हृदान। हरिणी का हमारा मैक्सिमम वाला था, सो यहां पे हमारा नाम क्या फिट हो जाएगा, यहां पे क्या नाम हो जाएगा हमारा, हरिणी। और जो हमारा मिनिमम वाला था, राइट, जो हमारा मिनिमम वाला था वो किसके लिए हो जाएगा, हृदान। ठीक है, डन। सो दिस इज हृदान एंड दिस इज हरिणी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हृदान एंड हरिणी के बाद। सो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज थर्ड पॉइंट तो हो गया, अब सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट बचा है, तो इसी से हम ब्रेक कर देंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय ऋषभ एंड हृदान, रानी एंड परी, हरिणी एंड सेसिल वाज इक्वल। नाउ इनमें नोटिस करो, ऋषभ और हृदान में, ये हृदान का मेरे को कॉम्बिनेशन पता है, तो मे भी हम इसके अराउंड सोच सकते हैं। ऋषभ एंड हृदान का जो डिफरेंस है, ठीक है, रानी एंड परी का जो डिफरेंस है, उन दोनों में से मेरे को अभी नहीं पता कि कौन कहाँ है, एंड हरिणी एंड सेसिल का जो डिफरेंस है वो बराबर है। नाउ हरिणी का भी नाम मेरे को पता है कि कहाँ पे बैठा हुआ है, 12 पे बैठा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें सोचना स्टार्ट करूंगा। लेट्स से सारी पॉसिबिलिटीज अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हृदान का मेरे को पता है कि चलो 6 है। अब ये जो मेरा नाम है, लेट्स से दिस ऋषभ, ठीक है, सपोज ये ऋषभ। अब अगर ऋषभ फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, दैट इज 7। अगर ऋषभ हमारा क्या हुआ, 7 हुआ, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ये हो सकता है फिट हो जाए। तो हृदान एंड ऋषभ का फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 एंड 7 यहाँ पे है, तो 6 एंड 7 है, तो डेफिनेटली फिर उनका डिफरेंस कितना आया, 1। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे सपोज ऋषभ लिखा, लेट्स राइट ऋषभ, लेट्स ट्राई टू राइट ऋषभ बिकॉज द पेन इज नॉट वांटिंग टू राइट इट। सो ऋषभ सपोज यहाँ पे आया, तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1 है, तो बाकी ये तीनों पेयर में हमारा डिफरेंस क्या होने वाला है, 1 का होने वाला है। तो ये जो हरिणी एंड सेसिल का डिफरेंस है वो भी हमारा 1 बनेगा। तो हरिणी हमारा 12 पे है, तो इसका मतलब सेसिल का कितना होगा, 1 होगा। तो सेसिल इज नाउ 1। तो अब मतलब ये है कि फिर रानी और परी का भी जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। नाउ इन दोनों में से किसी का भी 9 तो हो नहीं पाएगा। तो अब नोटिस करो,
6 टेकन है, 7 हो गया आर का, 11 और 12 सेसिल और हरनी का हो गया। तो अब हमारे पास अगर 9 को हटा दें, बिकॉज 9 ओनली बिलोंग्स टू बक्सी, तो हमारे पास 8 और 10 ही तो बचेगा। बट 8 और 10 का डिफरेंस फिर हमारा 1 नहीं है। बिकॉज 8 एंड 10 का डिफरेंस 1 नहीं है, इसका मतलब ये जो आर था जो हमने एज्यूम करा ये 7 है, दिस कैन नॉट बी आर। तो हमें क्या करना है, ये पॉसिबिलिटी यहां से हटानी है। सो दिस कैन नॉट बी आर, एंड ऑब्वियसली फिर ये भी हमारा सेसिल नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। अब 6 हमने करा, 6 के साथ 7 चेक कर लिया। नाउ लेट्स सपोज कि 8 बिलोंग्स टू ऋषभ। ठीक है, लेट्स सपोज 8 बिलोंग्स टू ऋषभ। ठीक है, 8 हमारा सपोज ऋषभ को बिलोंग करता है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हृदान और ऋषभ का फिर हमारा डिफरेंस कितना हुआ, 6 है, इसका 8 है, तो 2 का डिफरेंस है। तो हरिणी एंड सेसिल का भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज ये हमारा 12 है और 2 का डिफरेंस बनाना है, तो सेसिल का फिर 10 होना चाहिए। सो नाउ दिस हैज टू बिलोंग टू व्हाट, सेसिल। ठीक है, सो दिस हैज टू बिलोंग टू सेसिल। ओके, नाउ अब इनका हमारा हो गया 8 एंड 10। अब इसके बाद हमारे पास नंबर्स बचे कौन से, 6 हो गया, 8, 10 और 12 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 7 बचा है और 11 बचा है। 9 पे तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि 9 हमारा फिर से बाक्सी पे होना है। तो 7 और 11 पे ही हमारे फिर ये जो बचे हुए दो नाम है, दैट इज रानी एंड परी, वो आने पड़ेंगे। नॉट पॉसिबल, बिकॉज 7 और 11 का डिफरेंस तो फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी वैलिड नहीं है, इसको भी हटाओ। सो दिस कैन नॉट बी आर, एंड ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी सी। ठीक है, तो आर तुमने यहां पे भी नहीं रखा। तो अब 6 के साथ ना 7 हो पाया ना 8 हो पाया। 9 वैसे भी नहीं हो सकता, बिकॉज 9 पे सिर्फ बाक्सी आएगा, तो 9 नहीं हो सकता। तो अब 6 के साथ डिफरेंस हम डायरेक्टली फिर 9 अगर नहीं हो सकता तो 10 पे ले जाके इसको हम बाक्सी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? दिस हैज टू बी, सॉरी, ठीक है, जस्ट डू दिस। सो 6 के साथ हमारा 10 पे क्या आ जाएगा, बक्सी आ जाएगा सपोज, सॉरी नॉट बक्सी, ऋषभ आ जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया, ऋषभ का। ठीक है, अब 6 और 10 का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो हरिणी और सेसिल का भी डिफरेंस कितना बनाना पड़ेगा हमें, 4 का। इसका मतलब हरिणी का अगर 12 है और 4 का डिफरेंस बनाना है, तो 8 पे कौन आ जाएगा हमारा फिर, सेसिल। सो दिस हैज टू बिलोंग टू सेसिल। ठीक है, सो दिस हैज टू बिलोंग टू व्हाट, सेसिल। तो ये सेसिल हो गया। अच्छा, अब इनका डिफरेंस हमारा 4 का चल रहा है। अब नोटिस करो हमारे पास क्या नंबर बचे हुए हैं, अभी भी नोटिस करोगे तो इस भी केस में हमारा 7 और 11 ही बचा हुआ है। एंड नाउ दिस केस सेटिस्फाइज, बिकॉज 7 और 11 का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 4 का ही आएगा। और 7 और 11 हमारा 4 आएगा। बट हमें एक लास्ट पॉइंट बच गया जो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसको हम क्या देने वाले हैं, राइट? हमारे पास 7 और 11 तो बच गया है, ठीक है, एंड दीज विल बिलोंग टू, आई नो, दैट इज रानी एंड परी। बट किसका क्या होगा, ये चीज हमें फिगर आउट अभी भी करना बाकी है। तो 7 और 11 में किसका क्या होगा, और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये फोर्थ वाला अपना पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट इसने क्या बोला था, रानी और परी में, रानी के करस्पॉन्डिंग और परी के करस्पॉन्डिंग कंडीशन था। सो लेट्स यूज दैट। सो रानी बॉट 2 पेन्स। अब रानी बॉट 2 पेन्स, तो देख लो, तो जो हमारा 7 और 11 बचा है, इसमें ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस वन 7, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हमारा पेन्स का नंबर कितना है, 1। सो दिस डेफिनेटली डज नॉट बिलोंग टू रानी। तो रानी का कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा फिर हमारा, ये वाला। तो रानी बॉट 2 पेन्स, सो दिस हैज टू बिलोंग टू रानी। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज रानी, एंड ऑब्वियसली फिर दिस इज परी।
सो नाउ वी नो एवरी पर्सन, ठीक है। रिदान का हो गया, हमारा परी का हो गया, सेसिल है, ये हमारा ऋषभ है, ये रानी है और ये हरिणी है। नाउ वी डोंट हैव एनी मोर कंडीशन बिकॉज ऋषभ का कंडीशन दिया है, बट ऋषभ तो हम वैसे भी फिगर आउट कर ही चुके हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ऋषभ डिड नॉट बाई 2 पेन्स, तो हाँ ऋषभ डिड नॉट बाई 2 पेन्स। तो ये जो हमारा बचा हुआ पर्सन है दैट इज बाक्सी। बाक्सी का हमारा अभी भी दोनों ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो फिर लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय ऋषभ एंड परी? तो अमाउंट स्पेंड बाय ऋषभ, ऋषभ एंड परी, तो 7 इसका है और ऋषभ का हमारा कितना है, 10 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 3 का, ठीक है। सेकंड, फॉर हाउ मेनी फ्रेंड्स द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय देम कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली। नाउ सारे फ्रेंड्स के लिए हम अमाउंट तो स्पेसिफिकली बता ही सकते हैं ना, सिर्फ बाक्सी के लिए हम कॉम्बिनेशन नहीं बता पा रहे, बट फॉर एवरी पर्सन वी कैन डेफिनेटली टेल देयर अमाउंट स्पेंड। तो आंसर हमारा सेकंड क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 7। थर्ड, अमाउंट स्पेंड बाय रानी वाज, रानी का टोटल अमाउंट स्पेंड, सो रानी का टोटल अमाउंट स्पेंड इज 11, सो दिस हैज टू बी 11। फोर्थ, हु स्पेंड द थर्ड लोएस्ट अमाउंट अमंग द 7 फ्रेंड्स, सो थर्ड लोएस्ट अमाउंट, इसमें से लोएस्ट क्या है 6, तो थर्ड लोएस्ट क्या हो गया हमारा 8, तो हु स्पेंड 8, 8 किसका स्पेंड अमाउंट था, सेसिल का। सो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारे लिए, सेसिल, ठीक है। लेट्स ट्राई टू राइट दिस। चलो आई होप यू गेट दिस, ठीक है। द पेन इज एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग, सो दिस हैज टू बी सेसिल, ठीक है। लेट्स ट्राई टू राइट इट बाय योर माउस। Okay, perfect. So I hope you understood this set. Excuse me for the inconvenience caused by the pen, the lagging pen. Chalo, let's meet in the next video. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.